Hello students, welcome to our next lecture of surface chemistry. Today we have to cover the topic called catalyst. In this topic, we have to cover there are some certain points. First is catalyst, next the type of catalyst, third the feature of catalyst, fourth promoter and poison, and next is theories of catalysis. So let's start our video. Our first point, what is catalysis? Actually, the catalysis is based on the term which is called catalyst. What are catalysts? Means those materials which changes rate of reaction. The rate of reaction means that speed of reaction, means those material which changes the rate of reaction or the speed of reaction are called catalyst. On this basis, the catalyst can be divided into two categories. One is called positive catalyst and next one is negative catalyst. As the name suggests, positive catalyst, it means that those catalysts which increases the rate of reaction or the speed of reaction are called positive catalyst. For example, we all know that in the preparation of ammonia, the N2 gas reacts with H2 gas, it produces NH3. All are in gaseous state. To balance this equation, we put 3 here, we put 2 here. In this reaction, the material called iron or the metal called iron are behave as catalyst, which increases the rate of the formation of ammonia. Because iron enhances the reaction or increases the rate of reaction, therefore iron is behave as positive catalyst. Now come to the next point, negative catalyst. Similarly, as the name suggests, negative catalyst means those catalysts which decreases rate of reaction. पॉजिटिव में क्या हो रहा था, पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा था रेट ऑफ रिएक्शन को और नेगेटिव क्या करेगा, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. दोज कैटलिस्ट आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव कैटलिस्ट. फॉर एग्जांपल, as you know, when CHCl3, what is CHCl3? It is chloroform. When chloroform react with oxygen gas in presence of sunlight, it produces COCl2 plus HCl. So balance the equation, put half here. What is COCl2? COCl2 is called carbonyl chloride. Generally, it is called phosgene gas. It is poisonous in nature. When chloroform react with oxygen in presence of sunlight, it produces COCl2 plus HCl. It means it produces phosgene gas, which is poisonous in nature. Here, sunlight is considered as the promoter of this reaction. यानी ये क्या करती है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा रही है. लेकिन COCl2 के बारे में आपको पता है कि कैसे बनता है, तो क्लोरोफॉर्म से बनता है. एंड क्लोरोफॉर्म इट इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर. अब अगर आप ध्यान दो, अगर मार्केट में आ जाए क्लोरोफॉर्म की बोतल को लेंगे और कभी भी आपने लैब में देखिएगा, द क्लोरोफॉर्म बोतल इज ऑलवेज फुलफिल्ड. हमेशा क्या होती है, वो ऊपर तक भरी होती है. इट ऑलवेज फुल.
क्यों फुल भरते हैं? क्योंकि आप देख रहे होगा क्लोरोफॉर्म में अगर ऑक्सीजन गैस मिल गई, यानी बाहर से अगर इसमें क्या कही ऑक्सीजन गैस के अंदर पहुंच गई, तो ये पूरा क्लोरोफॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपके कार्बोनिल क्लोराइड में। हमको क्लोरोफॉर्म को वहां पे डेड नहीं करना है, ना ही इसको डिग्रेड करना है, हमको करना है वी हैव टू रिटेन द क्लोरोफॉर्म, हमको क्लोरोफॉर्म का रिटेन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन ना जाए, साथ साथ इसके पास सनलाइट भी नहीं पहुंचनी चाहिए। तो सनलाइट को नहीं पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टू प्रिवेंट दिस वी हैव टू यूज द डार्क कलर बॉटल। यहाँ पे डार्क कलर बॉटल का यूज करना पड़ेगा। बॉटल शुड हैव डार्क कलर। बॉटल कैसी होनी चाहिए? आपकी डार्क कलर होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए? फुलफिल होनी चाहिए। अगर फिर भी इस कंडीशन में भी मान लेते कुछ फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, भाई ये बॉटल खोलोगे आप, ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आना ही आना है। अगर इसको अगर थोड़ा प्रिवेंट करना है तो हम करते क्या है कि इस बॉटल के अंदर थोड़ा सा आप करते क्या हो, इसमें एक एडिशनल रिएजेंट डालते हैं, यानी यहां पे करते क्या हो, बता देते हैं। इसमें एक एडिशनल रिएजेंट का यूज किया जाता है। दोज रिएजेंट इज कॉल्ड 2% C2H5OH. It means 2% ethanol. The 2% ethanol here which work as negative catalyst. जब इसमें आप 2% इथेनॉल को डाल देते हो तो इथेनॉल करता क्या है? इस ऑक्सीजन के साथ जो इस क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हो रहा है, इसके रेट को करता क्या? ये डिक्रीज कर देता है। इसके रेट ऑफ रिएक्शन को ये डिक्रीज है, यानी इस पूरे प्रोसेस को 2% एथेनॉल अगर इसमें आपने खुद कर दिया तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2% एथेनॉल ये क्या कर रहा है? इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर दिस 2% इथेनॉल इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव कैटलिस्ट। इस तरह बिहेव करता है आपका ये नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह, क्योंकि यहाँ पे 2% इथेनॉल ने क्या किया? इस क्लोरोफॉर्म के डिग्रेडेशन को किसमें हो रहा था? कॉजिन में हो रहा था, उसने क्या किया? डिग्रेड कर दिया। Therefore, here the 2% ethanol is considered as negative catalyst. Okay, is that clear? Now, come to the next point. On the basis of phase, यानी phase के बेस पे, phase क्या होती है? What is the phase? Phase is a physical state. किसकी physical state? The physical state of reactant and catalyst. On the basis of physical state और phase, किसकी phase? reactant और catalyst की phase पे, this catalysis is categorized into two main categories. One is called homogeneous, next is heterogeneous. First is called homogeneous catalysis, next is called heterogeneous catalysis. अब homogeneous क्या होता है? अब क्योंकि आपको इस पे ध्यान देना है, रिएक्टेंट की फेज पे और कैटलिस्ट की फेज पे। इफ reactant and catalyst in same phase, यानी अगर आप ये रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों एक ही स्टेट में हो, यानी जिस स्टेट में रिएक्टेंट उसी स्टेट में कैटलिस्ट, अगर ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड, अगर ये लिक्विड है तो ये लिक्विड, अगर ये गैस है तो ये गैस, यानी इफ द फेज ऑफ रिएक्टेंट is same as the phase of catalyst, those particular catalysis is known as heterogeneous catalysis. तो क्या कहते हैं हम लोग? heterogeneous catalysis, it's called homogeneous catalysis. क्या कहते हैं उसको? homogeneous catalysis कहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर आप देखो, when SO2 गैस, इसमें है आपका ये SO2 गैस react with O2 गैस, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस react with oxygen gas in presence of nitrogen monoxide. It is present in a gaseous form. It produces SO3 molecule. It produces SO3 molecules, sulfur trioxide in gaseous state. To balance this equation, put 2 here and put 2 here.
दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। हमको यहाँ बैलेंस पे नहीं ध्यान देना है, मेन क्या आपका जो आपकी डेफिनेशन कह रही है, इफ द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इज सिमिलर टू द स्टेट ऑफ कैटलिस्ट, दिस पर्टिकुलर catalysis is known as homogeneous catalyst. For example, आपका SO2 when react with O2 gas in presence of nitrogen monoxide, either here the nitrogen monoxide behave as catalyst. It is also present in gaseous state. The state of catalyst is similar to the state of reactant. Therefore, this particular catalysis is known as homogeneous catalysis. Now next is heterogeneous, just opposite of it. इसी का क्या होगा आपका जस्ट अपोजिट होगा। अगर यहां बात किसी करो आप हेटेरोजीनस कैटालिसिस, हेटेरोजीनस कैटालिसिस क्या होगा? दोज कैटालिसिस प्रोसेस इन विच द रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट in different phase. It means those process in which reactant and catalyst are present in different phase. This particular catalysis is known as heterogeneous catalyst. It means reactant is key or catalyst इन दोनों की फेज क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी, डिफरेंट फेज में होंगे। अगर ये सॉलिड है तो हो सकता है ये लिक्विड हो, अगर ये सॉलिड है तो हो सकता है ये सॉलिड हो, मतलब किसी भी तरह से इनकी गैस क्या होनी चाहिए आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। तब क्या होगा आपका एक हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगा। अब इसका अगर एग्जाम्पल देखना हो आपको, देन व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस or this type? Take a simple example. When N2 gas react with H2 gas in ammonia preparation, अभी एक देखा था, it produce NH3 gas. किसके प्रेजेंस प्रोसेस हो रही थी? इन प्रेजेंस ऑफ आयरन मेटल। तो यहाँ पे क्या आपकी N2 गैस है, किस फॉर्म में आती? गैसियस फॉर्म में। H2 भी किस फॉर्म में आपका? गैसियस फॉर्म में। तो दीज आर द रिएक्टेंट, ये क्या है आपके? दीज आर द रिएक्टेंट। और ये क्या है आपका? इट इज अ कैटलिस्ट, ये क्या है आपका? कैटलिस्ट। रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस फेज एंड आयरन प्रेजेंट इन अ सॉलिड फेज। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिएक्टेंट आपके क्या थे? गैसियस फेज में थे, कैटलिस्ट क्या था आपका? सॉलिड फेज में था। दोनों की फेज में क्या है आपका? डिफरेंस है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनस कैटालिसिस। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, रिएक्शन क्या होगा आपका? द रिएक्शन इज बैलेंस। क्लियर हुई बात कि क्या होगा होमोजीनस? बहुत सिंपल सा है। इफ द फेज ऑफ रिएक्टेंट इज सिमिलर टू द फेज ऑफ कैटलिस्ट, देन दोज कैटालिसिस प्रोसेस कॉल्ड एज होमोजीनस। इफ द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ कैटलिस्ट, दोज प्रोसेस कॉल्ड एज हेटेरोजीनस कैटालिस्ट। तो होमोजीनस में दोनों की फेज सेम होगी, हेटेरोजीनस दोनों की फेज डिफरेंट होगी, और यही क्या होता है आपका होमोजीनस और हेटेरोजीनस कैटालिसिस होता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट आर द फीचर ऑफ कैटालिसिस? इसके फीचर क्या होते हैं, क्या क्या होती है इसके मेन पॉइंट, आप किस तरह से आप कहते हैं कि सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या है, क्या दिखाता है आपको कैटालिसिस, क्या क्या कैसे इसको आप पहचानोगे? पहली बात, इट इज वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी जब भी आप इसको केमिकल रिएक्शन में यूज करोगे, इट यूज इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आप कोई रिएक्शन कर रहे हो उसमें आप 3 to 4 kg या 5 kg कैटालिस्ट डाल दो, नहीं, इसका बहुत स्मॉल अमाउंट क्या होता है आपका यूज होता है। सपोज अगर आप यहाँ पे अगर रिएक्शन को देखो, व्हेन N2 गैस रिएक्ट विद H2 गैस इट प्रोड्यूस NH3, यहाँ पे क्या था आपका? आयरन था। तो यहाँ पे आयरन क्या होगा? अगर मान लो आपकी अमोनिया यहाँ पे कितनी हो रही है, 100 ग्राम तक का प्रिपरेशन हो रहा है, तो इसमें जो आयरन यूज होगा, ऐसा नहीं कि 100 ग्राम के लिए आपको 100 ग्राम आयरन चाहिए, नहीं, हो सकता है केवल इसका कितना यूज हो, 2 ग्राम। यानी बहुत थोड़ा सा अमाउंट कैटलिस्ट करता क्या है? इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द सेकंड फीचर। द सेकंड फीचर इज दैट
कैटलिस्ट नॉट कंज्यूम या रिएक्शन, यानी इनका क्या होता है, कंजम्पशन, इनका कंजम्पशन नहीं होता है। यानी किसी भी प्रोसेस में ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट कंज्यूम होकर के अपना प्रोडक्ट बना दे, नहीं, कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होगा। क्या हो सकता है, मान लो स्टार्टिंग में आपने ये जो आयरन लिया था उसका इतना बड़ा पीस था, सपोज करते हैं कितना था आपका, 2 ग्राम था, ठीक है, खूब बड़ा सा था आयरन। जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो इस आयरन के मान लो आपके क्या हो गए, स्मॉल स्मॉल पीसेस हो गए, बट द मास रिमेन्स कांस्टेंट। भाई एक बड़ा था उसका भी मास 2 ग्राम था, छोटे छोटे जब पाउडर में बन गया या फिर ब्रेक कर गया, टूट गया, तब भी अगर इसको देख लो तब इसका मास कितना आएगा, आपका 2 ग्राम आएगा। इट मीन्स ये कभी भी रिएक्शन में आपका कंज्यूम नहीं होता। कैटलिस्ट नेवर कंज्यूम रिएक्शन, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। इट ओनली चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, केवल आपके रिएक्शन के रेट को ये चेंज करते हैं, विदाउट कंजम्पशन, में कंजम्पशन नहीं होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट नॉट स्टार्ट रिएक्शन, ये कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई रिएक्शन आपका हो नहीं रहा है तो उसमें आप कैटलिस्ट डालो आपका रिएक्शन होने लगेगा, नहीं, ये केवल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। मान लो कोई आपका रिएक्शन चल रहा है, उसमें 5 मिनट का टाइम लग रहा है, यानी प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें रिएक्शन हो रही है और उसमें 5 मिनट का टाइम लग रहा है, तो कैटलिस्ट को डालने के बाद हो सकता है उसमें टाइम कितना लगेगा, 2 मिनट लग जाए, टाइम कितना 1 मिनट का हो जाए। लेकिन अगर कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है तो कैटलिस्ट को डालने वो रिएक्शन थोड़ी होगा, ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते। इट ओनली इंक्रीजेस और चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, वो केवल रेट ऑफ रिएक्शन को या उसके स्पीड को करते क्या, चेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4, इट डज नॉट इफेक्ट द नॉट इफेक्ट the position of equilibrium, यानी ये उस इक्विलिब्रियम फेज की पोजीशन को चेंज नहीं करते। मतलब समझो कैसे होगा, इक्विलिब्रियम फेज होती क्या है, द फेज इन विच द प्रोसेस विच इज रिवर्सिबल विच इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम, यानी ए से बी बनता है, बी से ए बनता है, यानी ये क्या आपकी ए का कंपोजिशन होकर बी बन रहा है, बी डिकम्पोज फिर से ये बना रहा है, यानी प्रोसेस किसमें आपकी इक्विलिब्रियम में, प्रोसेस कैसी आपकी रिवर्सिबल है। सपोज ए कन्वर्ट इनटू बी, इसमें कितना लग रहा है, 5 टाइम्स का टाइम लग रहा है, तो बी से ए कन्वर्ट होने में कितना लगेगा आपका, 5 टाइम्स का क्या होगा आपका कन्वर्जन होगा। यानी कैटलिस्ट को डालने पे जितना रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड का होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा आपका बैकवर्ड का होगा। यानी यहाँ पे कोई भी पोजीशन जो है वो आपकी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, जितने स्पीड से फॉरवर्ड होगा उतने स्पीड से क्या होगा आपका बैकवर्ड रिएक्शन होगा। इसका आपका मीन्स यही होता है, इट डज नॉट इफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इसकी पोजीशन चेंज नहीं, ऐसा नहीं है कैटलिस्ट जाने फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत स्पीड से हो जाए, अगर फॉरवर्ड भी हो रहा तो बैकवर्ड भी क्या होगा उसी स्पीड से होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। 5th पॉइंट, इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपका एक कैटलिस्ट सभी रिएक्शन के लिए यूज है ना, आप इसमें ये कह सकते हो वन कैटलिस्ट नॉट यूज्ड इन एवरी रिएक्शन, यानी ऐसा नहीं कि आपका एक ही कैटलिस्ट सारे रिएक्शन में आपका यूज हो जाए कि आयरन को हर रिएक्शन में आप डाल दो, सब रिएक्शन के उसके में चाहे जो सा रिएक्शन हो सबकी वो स्पीड को क्या करें आप इंक्रीज कर दे, ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं कि आप एक कैटलिस्ट सब में यूज हो, डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट कैटलिस्ट भी होते हैं, आपको ये बात पता भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल को देखें, अब आपको ये रिएक्शन अच्छे से याद हो गया होगा, when N2 gas react with H2 gas it produce NH3। अब यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोसेस ये तो कि आपको समझाना है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो बात अलग की है कि NH3 डिकम्पोजिशन आपका फिर से इसमें हो जाता है, बस ये फॉर अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए आप इसको देखो पहले।
कि यहाँ पे क्या था, ये गैसियस फेज में था, ये भी गैसियस में था, ये भी किसमें बन रहा था आपका, गैसियस फेज में बन रहा था। यहाँ पे क्या था आपका, आयरन कैटलिस्ट। यानी अमोनिया के लिए जो कैटलिस्ट का वर्क वो कौन करता है, आपका आयरन। उसी तरह से इन योर प्रीवियस क्लास you have learned about this particular reaction. It is called hydrogenation. कि जब एल्कीन पे हाइड्रोजन को हम करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, थोड़ी सी इसमें करते हैं क्या, हीट प्रोवाइड करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू एल्केन मॉलिक्यूल। इसमें कन्वर्ट होता है आपका एल्केन का। तो यानी इस प्रोसेस में अगर आप देखो तो इसमें क्या होगा, आपका आयरन कैटलिस्ट है, इस प्रोसेस में क्या है आपका निकल कैटलिस्ट है। यानी इस रिएक्शन के लिए अलग कैटलिस्ट, इस रिएक्शन के लिए आपका डिफरेंट कैटलिस्ट, यानी दोनों में क्या रखते हैं, अलग अलग कैटलिस्ट का यूज हो रहा है। देयरफॉर द कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट क्या होता है आपका, स्पेसिफिक होता है। जरूरी नहीं कि आपका एक कैटलिस्ट सब में यूज हो, इसके लिए अलग है और इसके लिए आपके अलग कैटलिस्ट है। इज दैट क्लियर? Now there are some other terms. One is called promoter. What are promoter? प्रमोटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रमोट करना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, है ना, थोड़ा उसको एनहांस करना। प्रमोटर होते क्या है, द प्रमोटर आर दोज मटेरियल विच वर्क ऑन, ये किससे वर्क करते हैं, इट वर्क ऑन कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के ऊपर वर्क करते हैं और करते क्या है, इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी of catalyst. It means there are substances which work on catalyst and increase its activity. यानी वो करते क्या है, कैटलिस्ट एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। Those are called as promoter. For example, when N2 gas react with H2 gas, it produce NH3. It is called as ammonia. To balance this equation, here the catalysts are used called as iron. यहाँ पे iron catalyst यूज होता है। And one more metal are used called as MO. MO is called as molybdenum. The molybdenum used in this process, it works on this particular iron catalyst and increases the activity of iron. यानी इस प्रोसेस में क्या होता है कि molybdenum जो कि आप इसमें आयरन के साथ आप इसको मिक्स करते हैं, ये मॉलिब्डेनम करता क्या, इस पर्टिकुलर आयरन जो आपका क्या था, मेन कैटलिस्ट था, यही क्या था आपका, ये आपका आयरन प्रोसेस में क्या था आपका कैटलिस्ट था, ये इसके ऊपर वर्क करता है और इसके स्पीड करता क्या, यहाँ पे इसकी एक्टिविटी करता क्या, यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। तो देयरफॉर हियर द मॉलिब्डेनम इज कंसीडर्ड एज प्रमोटर। यहाँ पे करते क्या है, ये प्रमोटर की तरह वर्क करते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे, किससे इसको आप समझोगे। सपोज करो इट इज द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ये क्या थी आपकी कैटलिस्ट की सरफेस थी, और ये प्रमोटर करते क्या, आप जानते हो सरफेस में क्या होते हैं आपके, सरफेस के मॉलिक्यूल होंगे, और जब सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं ये प्रमोटर करते क्या है, इन मॉलिक्यूल के बीच में आकर के, ये सब क्या हो गया आपके, मानो सरफेस के मॉलिक्यूल थे, और ये प्रमोटर करते क्या है, इनके बीच में आकर के इनके डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या था आपका हाइड्रोजन ऐड था, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड था, इनके बीच में क्या था आपका बॉन्ड, जैसे आपने देखा हुआ था CH2 डबल बॉन्ड CH2 में इसका रिएक्शन करते हो आप H2 का। अब इस H2 को इस पर रिएक्ट करना है तो H2 का मॉलिक्यूल पहले क्या होगा, उस सरफेस के ऊपर एड्रॉप होगा। तो ये क्या थे आपके सरफेस मॉलिक्यूल थे, ये भी क्या था आपका सरफेस का मॉलिक्यूल था, ये भी क्या था आपका सरफेस का मॉलिक्यूल था। अब इससे पहले क्या होगी, हाइड्रोजन गैस आपकी एड्रॉप होगी, एड्रॉप होने के बाद जब इसके बीच में प्रमोटर आ जाएगा तो इसकी जो डिस्टेंस है, यानी कंपेयर करो पहले जब प्रमोटर नहीं था तब क्या थे, ये केवल सरफेस के मॉलिक्यूल थे और इससे क्या थी हाइड्रोजन गैस आपके एड्रॉप हो गई थी। इनके बीच में जो डिस्टेंस और इनके बीच में जो डिस्टेंस अगर कंपेयर करोगे आप तो द डिस्टेंस आफ्टर एडिशन ऑफ प्रमोटर इन बिटवीन सरफेस मॉलिक्यूल क्या होता है आपका इंक्रीज कर जाता है। यानी जब प्रमोटर आपके सरफेस मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस है वो क्या होगा
इंक्रीज कर जाएगा। अगर इसके पर्टिकुलर क्या हुआ, डिस्टेंस इंक्रीज कर गया, तो डिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीजेस। अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, अट्रैक्शन बिटवीन बॉन्ड। अट्रैक्शन बिटवीन बॉन्ड क्या होगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। और स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई तो क्या होगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। यानी प्रमोटर करते हैं क्या है, इस सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच में आके ऐड हो जाते हैं। ये क्या थे आपके प्रमोटर, दीज आर प्रमोटर थे, कि जब प्रमोटर इसके बीच में आके ऐड हो जाता है तो ये करता क्या है कि इनकी डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है उस पर्टिकुलर एड्सॉर्ब स्पीशीज का क्या होता है आपका डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच में जो स्ट्रेंथ है यानी बॉन्डिंग अट्रैक्शन वो क्या होगा और कम हो जाएगा। अगर कम हो गया तो इजिली ब्रेक कर जाएंगे, और ब्रेक करने के बाद क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, इसीलिए रिएक्शन क्या होगा आपका और जल्दी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यानी इसीलिए प्रोमोटर का यूज करते हैं कि वो करता क्या है, इस पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट है उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, और स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होता है और ज्यादा आपका बढ़ जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। ये सरफेस मॉलिक्यूल किसके थे आपके, क्वेश्चन उठाना चाहिए ना, ये सरफेस मॉलिक्यूल किसके थे आपके, ये पर्टिकुलर रोज कैटलिस्ट किसके होंगे, आपके कैटलिस्ट सरफेस मॉलिक्यूल होंगे। इसकी पे क्या होता है, पहले आपकी हाइड्रोजन गैस ऐड होती है, जब प्रमोटर आता है तो इस कैटलिस्ट के जो सरफेस मॉलिक्यूल इनके डिस्टेंस को और बढ़ा देता है, जिससे ये आपके एड्सॉर्ब हाइड्रोजन इनकी डिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, और रिएक्शन आपका इजिली कंप्लीट हो जाता है। इज दैट क्लियर। Now come to the next point, which is called as poison. Poison, very familiar word. Poison क्या होता है, Poison are those components, ये भी क्या होते हैं आपके, ये भी ध्यान रखो, it also works on catalyst, ये भी क्या होते हैं आपके कैटलिस्ट पे वर्क करते हैं। और प्रमोटर क्या कर रहा था, द प्रमोटर इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, तो पॉइजन क्या होगा, जस्ट अपोजिट, द पॉइजन डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। यानी पॉइजन क्या करता है क्या आपका, इट डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये करते क्या है, ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल व्हेन N2 गैस रिएक्ट विद H2 गैस इट प्रोड्यूस NH3। हियर वी यूज आयरन। आयरन के अगर प्रेजेंस में अगर ये प्रोसेस आप करें तो क्या बनता है आपका, अमोनिया का प्रिपरेशन होता है। हियर द कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या आपका CO, CO में फॉरवर्ड हो समझना, ये क्या आपका, इट इज अ कार्बन मोनोऑक्साइड। द कार्बन मोनोऑक्साइड हेयर वर्क एज अ पॉइजन, यानी जब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप इसने इंप्लीमेंट कर दिया, वो क्या करेगा, इस कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी उसको डिक्रीज कर देगा, यानी कैटलिस्ट के फंक्शन में क्या करेगा, बैरियर का वर्क कर देता है। Therefore, this carbon monoxide in this reaction behave as poison। ये करता क्या आपका, पॉइजन की तरह बिहेव करता है। वो किसकी एक्टिविटी कम कर रहा है, कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट की एक्टिविटी करता है क्या, वो डिक्रीज कर देता है। Therefore, carbon monoxide behave as a poison। कैसे करता है, हाउ इट वर्क, इसको अगर आप यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखो कैसे होगा। सपोज इट इज अ सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ये क्या थी आपकी सरफेस थी, इज द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। अगर ये कैटलिस्ट की सरफेस थी, इसके ऊपर क्या हो गया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ गए, इसके सरफेस किसको आना चाहिए था, हाइड्रोजन को आना चाहिए था, क्योंकि वही आपका रिएक्टेंट है, उसको वर्क करना है। लेकिन हाइड्रोजन की प्लेस पे कौन आ गया आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जब सरफेस पे आकर के कैटलिस्ट के एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी ये कौन सा कैटलिस्ट था, आयरन था। अगर इसकी सरफेस पे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके एब्जॉर्ब हो गया, ये क्या कर लेगा, ऑल सरफेस ऑक्युपाइड, ये सारे सरफेस को क्या करेगा आपका, ये ऑक्युपाइड कर लेगा। If it occupy all surfaces, there are no vacant area for adsorption
ऑफ हाइड्रोजन। यानी अगर यहाँ पे पूरा पूरा सरफेस एरिया को कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्युपाइड कर लिया, अब हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे क्या कोई भी आपका वेकेंट एरिया नहीं बचा। अगर कार्बन का क्या नाम से हाइड्रोजन के लिए आपका कोई भी वेकेंट एरिया नहीं बचेगा, तब क्या होगा? तब क्या यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, जब तक आपका कार्बन मोनोऑक्साइड वहां से रिमूव ना हो जाए। तो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया, उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए इस कैटलिस्ट के पूरे सरफेस को कवर कर दिया, जिससे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। If hydrogen not absorbed on a surface, it cannot proceed the reaction. वो रिएक्शन को प्रोसीड नहीं कर पाएगा। Therefore, here the carbon monoxide behave as poison. इस तरह बिहेव करता है आपका ये पॉइजन की तरह। Is that clear? तो प्रोमोटर को आपने समझ लिया और पॉइजन को आपने समझ लिया। Now come to the next point. Theories of catalysis. There are some theories which एक्सप्लेन द कैटालिसिस। कैटालिस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ आपकी थ्योरी होती है। कौन कौन सी थ्योरी होती है? फर्स्ट, द इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी क्या करती है? दिस थ्योरी एक्सप्लेन दैट सपोज ए रिएक्ट विद बी, इट प्रोड्यूस ए बी। किसके प्रेजेंस में? आपका कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या लगा हुआ है? आपका एक्स लगा हुआ है। इफ ए रिएक्ट विद बी इन प्रेजेंस ऑफ एक्स कैटलिस्ट, इट प्रोड्यूस ए बी। ए बी का प्रोडक्शन करता है। अब इस थ्योरी में क्या होगा कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन क्या होगा? अपने आप नहीं होगा। पहले क्या होगा? ए रिएक्ट विद एक्स, इट मीन्स इट प्रोड्यूस ए। इट इज द स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में क्या होगा? पहले ए एक्स के साथ पहले रिएक्ट करे, कैटलिस्ट बनाएगा आपका ए एक्स। तो यानी यहाँ पे क्या होगा? पहले कैटलिस्ट का कंजम्पशन होगा। पहले कैटलिस्ट का क्या होगा? पहले कैटलिस्ट आपका यहाँ पे कंज्यूम होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? कैटलिस्ट कंजम्पशन हो गया। अगर फर्स्ट स्टेप में कैटलिस्ट कंजम्पशन हो गया, अब तो आप ये कहो कैटलिस्ट कंज्यूम होता नहीं है। नाउ इन स्टेप 2, व्हेन AX react with B, it produce AB, and the X catalyst it becomes free। यानी पहले स्टेप में जो आपने देखा था कि यहाँ पे क्या हो रहा था? ये कंज्यूम हो रहा था। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? ये आपका एक्स कैटलिस्ट आपका फ्री हो गया। यानी अगर देखा जाए तो ओवरऑल द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होगा? कैटलिस्ट आपका पूरी तरह से क्या होगा? फ्री हो जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेप में भले कंज्यूम हो गया, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या हो गया? आपका फ्री हो जाता है। इससे हम कहते हैं देयर विल बी नो कंजम्पशन ऑफ कैटलिस्ट टेक प्लेस इन अ रिएक्शन। यानी इतनी बातें क्लियर हुई। अब अगर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखना हो, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अब यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे शो करना है? यू हैव स्टडी इन योर 11th क्लास ऑल्सो। आप इसको 11th क्लास में पढ़ चुके हो। द रिएक्टेंट ए एंड बी, इसकी कुछ एनर्जी होगी। क्या करेंगे आप? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा? एक हाई बैरियर होगा जिसको क्रॉस करके क्या बनाता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, एंड द प्रोडक्ट इज AB। ये जो पर्टिकुलर आपको हाई पीक मिलती है, दिस हाई पीक, इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। दिस हाई एनर्जी बैरियर इज कॉल्ड ट्रांजिशन एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन एनर्जी होती क्या है? इन दिस पॉइंट द कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में कनेक्शन? आपके रिएक्टेंट के बीच में। कौन सा था आपका? A एंड B। यहाँ पे ये क्या होता है? आपका वीक होता है।
यानी जब तक ये पर्टिकुलर ए और बी रिएक्टेंट इस पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो ए बी को फॉर्म नहीं कर सकते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट टू द ट्रांजिशन एनर्जी इज कंसिडर्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की एनर्जी से और यहाँ ट्रांजिशन एनर्जी के बीच में जो आपका एनर्जी का बैरियर होता है, एनर्जी का जो आपको देख रहे हो गैप जो है, तो हम कहते हैं क्या उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी जब तक ये ए और बी इस पर्टिकुलर पॉइंट क्रॉस नहीं करेंगे इट कैन नॉट फॉर्म द ए बी कंपाउंड। जब कैटलिस्ट आता है तो क्या करता है, कैटलिस्ट इसी प्रोसेस में इस एनर्जी बैरियर को रिड्यूस कर देता है। यानी पहले एनर्जी बैरियर क्रॉस करने में सपोज करो आप 50 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रही थी, तो आपका कैटलिस्ट क्या होगा, जब आपने कैटलिस्ट को इसमें अप्लाई कर दिया तो आपका कैटलिस्ट ये एनर्जी कितनी हो गई आपकी, सपोज करो कितनी हो गई 20 किलो जूल। कम हो गया ना, पहले 50 लग रहा था, कितना हो गया आपका 20। तो कैटलिस्ट आपका यही वर्क करता है कि इट डिक्रीजेस द ट्रांजिशन एनर्जी। वो ट्रांजिशन एनर्जी करता क्या आपका, वो डिक्रीज कर देता है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा, थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है, इससे वो प्रोसेस आपकी जल्दी हो जाती है और पहले हो जाती है। तो कंक्लूजन क्या निकला, बिफोर कैटलिस्ट के पहले जब आप उसमें कैटलिस्ट ऐड नहीं करते हो, प्रोसेस कैसी थी, इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। पहले क्या थी आपकी, सिंगल स्टेप प्रोसेस थी। अगर सिंगल स्टेप थी तो उसमें क्या था, एनर्जी बैरियर कैसा था आपका, हाई एनर्जी बैरियर। पहले क्या था आपका, हाई एनर्जी बैरियर। यानी पहले जब आप कैटलिस्ट को जब आप ऐड नहीं कर रहे थे तो उसमें क्या देखो, सिंगल स्टेप थी, क्या हो रहा था आपका, हाई एनर्जी बैरियर। आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, यानी जब आप कैटलिस्ट को ऐड करते थे तब after addition of catalyst, after the process become two-step process, the one step process become two-step process। अगर two step process हो गई इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट आपका क्या था इंटरमीडिएट स्टेट, यहाँ पे क्या बन रहा था, कंजम्पशन ऑफ क्या हो रहा था आपका कैटलिस्ट। इन नेक्स्ट स्टेप वहां पे क्या आपका रिएक्शन होता है और साथ में क्या होती है, जो आपका कैटलिस्ट वो आपका फ्री हो जाता है। यानी जब टू स्टेप प्रोसेस होगी तो यहाँ पे क्या होगा, लो एनर्जी बैरियर। इफ द एनर्जी बैरियर बिकम्स लो देन द प्रोसेस विल अकर इजली। जब अगर आप एनर्जी बैरियर कम हो गया तो प्रोसेस क्या होगी, इसलिए आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो ये क्या होता है आफ्टर कैटलिस्ट और बिफोर कैटलिस्ट जो आपकी कंडीशंस बनती हैं उनका यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन यहाँ पूरा तरह तो आपने समझ लिया, पूरी तरह से उसका आपका क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी इज अ एडसॉर्प्शन थ्योरी। नेक्स्ट क्या भी आपकी एडसॉर्प्शन थ्योरी। एडसॉर्प्शन एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे क्या होगा आपका एडसॉर्प्शन होगा, लेकिन कब होगा, इन दिस कंडीशन it occurs only when catalyst is solid। अगर कैटलिस्ट आपका सॉलिड है तभी आपकी एडसॉर्प्शन थ्योरी यहाँ पे आपकी क्या फेवर होगी, क्योंकि क्या चाहिए, सॉलिड सरफेस चाहिए, सॉलिड सरफेस से क्या होगा, एडसॉर्प्शन होगा किसका, रिएक्टेड का। तो यहाँ पे एडसॉर्प्शन थ्योरी ओनली वर्क्स ऑन दो कंडीशन इन विच द कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। अगर आपका कैटलिस्ट सॉलिड स्टेट में होगा तभी क्या होगी, उसमें आपकी एडसॉर्प्शन थ्योरी आपकी प्रोसीड करेगी, उसी में एडसॉर्प्शन थ्योरी की आप स्टडी करेंगे। अब कोई एक एग्जांपल ले लो आप, सपोज CH2 double bond CH2, it is a alkene unsaturated hydrocarbon when it react with hydrogen gas in a presence of palladium या निकेल catalyst क्या बन जाता है, it becomes saturated alkane। अनसैचुरेटेड किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, सैचुरेटेड एल्केन में। यानी ये प्रोसेस क्या हुई आपकी, किसके प्रेजेंस में हो रही है, निकेल हो गया, प्लेडियम हो गया, दिस बोथ आर सॉलिड कैटलिस्ट। ये दोनों क्या थे आपके, सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं। और इस एडसॉर्प्शन थ्योरी के अंदर देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स, इसके अंदर कई सारे आपके स्टेप्स होते हैं जिनमें ये आपकी एडसॉर्प्शन थ्योरी कंप्लीट होती है। तो देयर द स्टेप्स आर, कौन कौन से स्टेप होते हैं,
फर्स्ट इज डिफ्यूजन। किसका डिफ्यूजन होगा? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पहले क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट स्टेप इज द एड्सॉर्प्शन। भाई अगर एक बार डिफ्यूज कर गया फिर क्या होगा आपका? एड्सॉर्प्शन होगा। आफ्टर एड्सॉर्प्शन द नेक्स्ट स्टेप इज इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन एंड लास्ट स्टेप इज डिसॉर्प्शन। लास्ट स्टेप क्या होगा इसमें? डिसॉर्प्शन होगा। बाय दिस फोर स्टेप the adsorption theory explains that how the solid catalyst convey the reaction, how the solid catalyst completed the reaction। जैसे आपका ये solid catalyst करता है क्या है? किसी रिएक्शन को कंप्लीट करता है या उसकी स्पीड को इनहेंस करता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक डायग्रामेटिक आप फॉर्म इसको समझो। सपोज दिस इज द कैटलिस्ट सरफेस। ठीक, यहाँ पे क्या होंगे? कुछ आपकी वेकेंट साइट्स होंगी या फिर और सारे इसमें क्या होंगे? कैटलिस्ट आपके जुड़े होंगे। रिएक्टेंट कौन से? आपके ए एंड बी रिएक्टेंट। तो पहले ए और बी रिएक्टेंट और इनमें क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया। ये आपस में क्या होते हैं? आपस में ये डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूज का मतलब आपस में ये क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट में आते हैं। कॉन्टैक्ट के डिफ्यूजन के बाद क्या होता है कि ये जो ए और बी रिएक्टेंट है, जो कैटलिस्ट की आपको साइड दिखती है, दीज आर द वेकेंट साइड, वहां पे क्या होगा? इनका एड्सॉर्प्शन होगा। तो डिफ्यूजन के बाद क्या होती है? एड्सॉर्प्शन। यानी यही थी क्या आपके कैटलिस्ट। इन दिस कैटलिस्ट एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट एंड ए एंड बी अकर्स। इसमें क्या होगा? ए और बी रिएक्टेंट क्या हो गया? इसमें एड्सॉर्प्शन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? इसमें एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के बाद क्या थी स्टेप? इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मतलब क्या है कि इनके बीच में क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी रिएक्टेंट। अगर इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड की ब्रेकिंग। यहाँ पे क्या होगी? बॉन्ड की ब्रेकिंग को हम कहते हैं। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे बॉन्ड की क्या हो रही है? ब्रेकिंग हो रही है। तो एक स्टेट बन के आती है। कौन सी? आपके ट्रांजिशन स्टेट। यानी यही जो आपकी एड्सॉर्प्शन है। एड्सॉर्प्शन के बाद क्या होती है? इसमें फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ए और बी के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है। और इसको आप अगर शो करना है इधर ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे या फिर कैटलिस्ट है जिसमें एड्सॉर्प्शन हो चुका था। आफ्टर एड्सॉर्प्शन इनके बीच में क्या हो रहा है? द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड की ब्रेकिंग। और यहाँ पे भी क्या हो रही है? बॉन्ड की ब्रेकिंग। और जब इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कौन सी स्टेट थी आपकी? इंटरमीडिएट स्टेट आई है। ये क्या थी आपकी? इंटरमीडिएट स्टेट। अगर बॉन्ड का फॉर्म हुआ और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पहले क्या था इसमें? जब एड्सॉर्प्शन हुआ था, अगर बॉन्ड ब्रेक कर गया इसमें बिटवीन द साइट ऑफ कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट, अगर साइट ऑफ कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई, देन द प्रोसेस कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। यहाँ पे क्या होगा? डिसऑप्शन होगा। डिसऑप्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे बॉन्ड आपके ब्रेक हो गए, तो ये बॉन्ड तो आपके रिड्यूस कर गए, टूट गए। अगर ब्रेक कर गया तो यानी क्या होगा? ए और बी के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट था इसकी साइड क्या हो गई? पूरी तरह से आपकी फ्री हो गई। यानी फिर कोई आपका नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा, फिर से उसको क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा, फिर से उसमें क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, एड्सॉर्प्शन होगा, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, देन क्या होगा? डिसऑप्शन होगा और लास्ट में आपको क्या मिल गया? कंपाउंड ए बी का फॉर्मेशन। यानी पहले जो आपका ए और बी था पहले अलग अलग थे, लास्ट में क्या हुआ? जब फॉर्मेशन हो गया इनके बीच में बॉन्ड का, वो क्या हो गया? इनका प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोसेस खत्म हो जाएगी। और सिंगल स्टेप में आप कैसे दिखाते हो? अगर आपको सिंगल स्टेप में इसको शो करना हो इन अ सिंगल स्टेप तो आप कहोगे द कैटलिस्ट प्लस रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी। क्या हुआ इसमें? लास्ट में कैटलिस्ट आपका फ्री हो गया, प्लस ये क्या बनाया? ए और बी का, ये क्या बन जाता आपका? दिस इज द प्रोडक्ट। यानी पहले क्या रहे? दोनों रिएक्टेंट आपके अलग अलग थे। आप आफ्टर द रिएक्शन में क्या हुआ? इट प्रिपेयर बॉन्ड बिटवीन दिस रिएक्टेंट। इनके रिएक्टेंट के बीच में क्या हो गया? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, कैटलिस्ट आपका फ्री हो गया, तो कैटलिस्ट का कंजम्पशन भी नहीं हुआ।
प्रोसेस भी अभी कंप्लीट हो गई और स्पीड ऑफ रिएक्शन भी इसमें आपका हाई हो गया. ओके, दिस इज द, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे. ओके, today we have studied about the catalyst, their type, their features, the phase of the catalyst, as well as how the theory explains the catalyst, in which we study about the two theories. First is called intermediate compound theory and next one is the adsorption theory. Okay class? Thank you.